Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.6 पेंटिंग्स चित्रकला के बारे में। द डेवलपमेंट्स इन पेंटिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड हैव नॉट बीन स्टडीड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सैम्पल्स। सीमित प्रतिरूपों की वजह से सल्तनत युग में चित्रकला के विकास का अध्ययन हो नहीं सका। अब देखिए, प्रतिरूप मतलब सैंपल होता है, चित्रकला पेंटिंग को कहते हैं। The closest view that one has of murals in the Sultanate is to the numerous literary references. सबसे नज़दीकी दृष्टिकोण सल्तनत काल के साहित्यिक प्रसंगों से प्राप्त भित्ति चित्र में मिलता है। The earliest reference to murals is in a qasida in praise of Iltutmish, which describe the figures depicted upon the scoundrels of the main ark that was raised to welcome the envoy of the caliph. अब देखिए, भित्ति चित्र का आरंभिक संदर्भ इल्तुतमिश की प्रशंसा में कसीदा में से प्राप्त होता है, जो खलीफा के राजदूत का स्वागत करने के लिए बनाए गए मुख्य मेहराब के दीवार पर वर्णित आकृतियों का वर्णन करता है। In another reference in Tariq-e-Firoz Shahi, there is a reference to the Sultan seeking to ban the tradition of figural paintings on the walls of the palaces of Delhi. अन्य संदर्भों में तारिख-ए-फिरोज शाही में भी मिलता है, जिसमें दिल्ली के महलों की दीवारों पर उभरी चित्रकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई है। Quranic calligraphy also became popular across South Asia during this period. इस काल में दक्षिण एशिया में कुरानी सुलेखन बहुत ही लोकप्रिय हो चला था। The earliest copy of the Quran, dated 1399, was written in ग्वालियर। कुरान की प्रथम प्रतिलिपि 1399 में ग्वालियर में लिखी गई थी। The manuscript was decorated with a variety of ornamental motifs. अब देखिए, पांडुलिपि विधि अलंकारिक नमूनों द्वारा सजाई गई थी। By the 15th century, the kingdoms of Gujarat, Malwa and Jaunpur emerged as important centers of art. 15वीं शताब्दी तक गुजरात, मालवा तथा जौनपुर के राज्य कला के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। Paintings in medieval India entered a new phase under the Mughals. मुगलों के काल में भारत में चित्रकला ने नए युग में प्रवेश किया। They altered the character of painting across North India. उन्होंने पूरे उत्तर भारत में चित्रकला के चित्रों को पूरी तरह बदल दिया। The Mughal paintings are defined by the styles and subjects popular at the imperial court. मुगल चित्रकला शाही दरबार में प्रचलित विषयों तथा शैलियों द्वारा परिभाषित होती है। The early origin of the Mughal schools of painting can be traced to Kabul. मुगल चित्रकला की आरंभिक शैली हमें काबुल में मिलती है। During the reign of Humayun, two Persian artists, Mir Sayyid Ali and Abdus Samad, were patronized. हुमायूं के शासनकाल में दो प्रमुख फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को राजसी संरक्षण प्राप्त था। अकबर deputed them to illustrate manuscript of हमजानामा। अकबर ने उन्हें हमजानामा की पांडुलिपि की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया था। This manuscript of 1400 pages was compiled by artists drawn from Gwalior, Gujarat, Lahore and Kashmir. 1400 पन्नों वाली पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट गुजरात,
ग्वालियर, लाहौर तथा कश्मीर के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। It is during this period that many features of Mughal painting developed. इसी काल के दौरान मुगल काल की नए विशेषताएं विकसित हुईं। Many paintings of this period are collaborative efforts with 2 or even 4 painters working on one painting. आगे देखिए, बोल रहा है इस युग में एक ही चित्र पर 2 या यहाँ तक कि 4 चित्रकारों द्वारा बनाई गई चित्र सामूहिक कार्य हैं। Among the important features of the paintings of this period are restricted movement of the figures, fineness of lines of drawings, and flat depiction of architectural columns. इस आगे देखिए, इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता में से मुख्य हैं आकृतियों की सीमित गतिविधियां, चित्रकारी की रेखाओं की परिष्कृतता तथा वास्तुशिल्पी स्तंभों का समतल चित्रांकन। The Mughal paintings are also marked with a naturalism and rhythm. The clothing of the objects assumed Indian forms and the use of subsidiary scene in the background. The two most common themes in Mughal paintings of this period are specific events in the court and the portraits of leading personalities. मुगल चित्रकला अपनी स्वाभाविकता तथा लय, भारतीय वस्त्रों में पात्रों का चित्रण तथा पृष्ठभूमि में पूरक दृश्यों में प्रयोग के लिए भी विख्यात है। मुगल चित्रकला की 2 प्रमुख विषय वस्तु दरबार की मुख्य घटनाओं का चित्रण तथा विख्यात व्यक्तियों के रूप चरित्र थे। अब देखिए, यहाँ पे आप एक पेंटिंग देख पा रहे हैं, ये मुगल पेंटिंग है। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये कितना अच्छे से बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर देयर वर अदर चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ मुगल पेंटिंग्स। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला में और परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। द पेंटिंग of the Jahangir period accentuate a formal style and have broad margins which are well decorated with the depiction of flora and faces of human figures. The naturalistic representation matured during the reign of Jahangir. जहांगीर कालीन चित्रकला रूपवादी शैली पर जोर देती है तथा वृहद हाशिए वाले चित्र मिलते हैं जो वनस्पतियों तथा मानवाकृतियों के चेहरों के चित्रण द्वारा सुसज्जित हैं, सजाई गई हैं। The use of trees, birds, streams and rivers in the backdrop of the painting became very powerful. आगे देखिए, बोल रहा है यह स्वाभाविक है चित्रण जहांगीर के शासन काल में फला फूला। चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों, नदियों, पक्षियों तथा नहरों का प्रयोग बहुत ही लोकप्रिय हुआ। There are interesting scenes of love and portraits of women members attached to the royal courts in Mughal paintings of the Shah Jahan period, while the painting of the Aurangzeb period provide glimpses of the Mughal emperor during his campaigns. As in architecture, the Mughal paintings also gave way to the growth and development of regional styles that tried to replicate the same features and characteristics decorative designs. आगे देखिए, बोल रहा है शाहजहां के शासनकाल में बने चित्रों में शाही दरबार से संबंधित स्त्रियों का चित्रण तथा प्रेम के रोचक दृश्य परिलक्षित होते हैं, हमें देखने मिलते हैं। जबकि औरंगजेब के शासनकाल में बने चित्र मुगल शासक के सैन्य अभियानों
की झलक दिखलाते हैं। स्थापत्य कला आर्किटेक्चर में भी मुगल चित्रकारी ने क्षेत्रीय शैलियों के विकास तथा प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसने समान विशेषताओं वाली अलंकृत के को दोहराने का प्रयत्न किया। Rajput paintings that are also of the same period consist of various different court style corresponding to the various Rajput kingdoms. इसी काल की राजपूत चित्रकारी में विभिन्न राजपूत शासकों के विविध राज दरबारों का चित्रण था। The Rajput paintings during the 16th and 17th centuries used many representation of mythology and of court scenes. 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में राजपूत चित्रकला में कई प्रणालियों तथा दरबारों के दृश्यों का चित्रण हमें मिलता है। अब ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग राजपूत पेंटिंग का है। आगे देखिए। The Rajput paintings are spread over a larger geographical region, with each region forming a separate subtopic in the artistic scheme. राजपूत कला की चित्रकला बहुत ही विस्तृत भूभाग पर फैली थी। हर क्षेत्र में कलात्मक विषय में भिन्न उप विषय का निर्माण हुआ। The other styles that were popular were the regional styles of the Deccan and the region of Bengal, गुजरात एंड ओडिशा। अन्य लोकप्रिय क्षेत्रीय शैलियों में दक्कनी शैली मुख्य थी तथा बंगाल, गुजरात और उड़ीसा में भी कला की क्षेत्रीय शैली का विस्तार देखने को मिलता है। The Rajput paintings further flourished in the 18th century when many of the artists shifted to the courts of their new patrons. राजपूत चित्रकला वापस से 18वीं शताब्दी में फली फूली, जबकि कई कलाकार अपने नए संरक्षकों की शरण में आए। This also coincided with the emergence of many smaller regional styles of painting. इसी समय कला की कई क्षेत्रीय शैलियों का उदय भी देखने को मिला। These paintings are known for the intensity of the colors that they use and depict hunting scenes, portraits of individuals, and of musical sessions. The main styles of this painting were the Mewar, Bundi, and the Kishangarh schools. ये चित्र अपने रंगों की चटकता के लिए विख्यात हैं तथा आखेट के दृश्य, व्यक्ति या रेखा चित्र तथा संगीत सत्र का वर्णन इनमें मिलता है। यह चित्रकला की मुख्य शैलियाँ मेवाड़, बुंदी तथा किशनगढ़ शैलियों में शामिल मिलती हैं।